Good evening, dear students. So, get back to our discussion on violence against women, right? So, yesterday in my last lecture, I had told you about the various types of violence, domestic as well as public violence. Those are generally done against women in order to intimidate them, in order to terrorize them, and so as to keep them subjugated and dominated in a male dominated society, right? Now, today we shall look at the causes of violence against women. तो कल हम लोगों ने जहाँ पर ख़त्म किए थे वो था situations of conflict, मतलब within a household when conflict arises between a male and a female partner, between husband and the wife, then many consequences can follow. First of all, the wife may have to leave her in-laws house due to husband's pressure. The husband may declare talaq against his wife, which makes the wife leave her husband's home and go to maybe her father's home. But generally we find that even in her own home, in her father's home, she is not very well treated after she is abandoned by her in-laws. Generally what happens? There also a new kind of violence, a new kind of conflict begins, and the woman who has to live in her father's home because of being left by her husband has to face several situations which are adverse to her mental and physical development. So what happens? In her father's home also she has to suffer from violence, maybe sexual violence by some relatives or some neighbors who may take advantage of this girl because she has been abandoned by her husband. So the other male relatives of her can take advantage of this situation. Then even in her father's home she can be subject to domestic violence, maybe by her brother or the brother's wife, and several undesirable situations may arise. So let us look at the causes of this sort of violence against women. First of all, it is gender disparity. So what we mean by gender disparity? Gender disparity actually means the discrimination between the man and the woman, between the male and the female. तो मर्द और औरत के बीच भेदभाव को कहा जाता है जेंडर डिस्पैरिटी. किस तरह का डिस्पैरिटी? मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था, घर में दो बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा. बेटा को अच्छा एजुकेशन देने के लिए माता पिता उसे अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन बेटी की पढ़ाई की तरफ किसी को कोई ध्यान नहीं, बेटी को घर का काम सिखाया जा रहा. फिर देखा जाता है जब हायर एजुकेशन की बात आती है तो लड़कों के लिए सब एवेन्यूज़ ओपन है, लड़कों को अच्छे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेने के लिए भेजा जाता है, लेकिन बेटी को कहा जाता है तुम पढ़ के क्या करोगी, तुम्हें तो शादी करके दूसरे किसी के घर चले जाना. सो दैट इज़ जेंडर डिस्पैरिटी, जब आप लड़का और लड़की के बीच फ़र्क कर रहे हैं. फिर देखिए कुछ डिस्क्रिमिनेटरी जेंडर नॉर्म्स एंड जेंडर स्टीरियोटाइप्स also result into structural inequality. तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स, इस बात का मतलब क्या हुआ? What is the meaning of gender stereotypes? हमारे समाज ने कुछ टिपिकल नियम बना के रखा है जो मर्द के लिए एक तरह का है, औरत के लिए दूसरे तरह का है. तो
कैसा है ये स्टीरियोटाइप? कहा जाता है कि घर में बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, खाना पकाना ये सिर्फ और सिर्फ औरत का काम है और बाहर जाके नौकरी करना और इनकम करके घर में ले आना ये मर्द का काम है। सो दैट इज़ अ स्टीरियोटाइप। और देखिए ये स्टीरियोटाइप पब्लिक स्फीयर में भी अक्सर चलता रहता है। जब भी बात आती है प्रोफेशन की कि विमेन के लिए कौन सा प्रोफेशन अच्छा है और मर्द के लिए कौन सा प्रोफेशन ठीक है, तो देखा जाता है विमेन के लिए हमेशा नर्सिंग या फिर हमेशा टीचिंग ऐसे प्रोफेशन को सिलेक्ट किया जाता है। मर्दों के लिए इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, एरोप्लेन में पायलट बनना ये सब बहुत आसान है। लेकिन जब भी एक औरत बोलती है मुझे भी प्लेन में पायलट बनना है या फिर मुझे भी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो समाज में काफ़ी सवाल उठते हैं कि क्या वाकई ही औरतें ऐसे रोल, ऐसे प्रोफेशन के लिए फिट है। सो दैट इज़ जेंडर स्टीरियोटाइप मीन्स सम रूल्स आर purposely created for the males and certain rules are purposely created for the females, and generally these rules are static and very rigid, and if anybody wants to break these rules then he or she will have to face several questions within the private as well as the public sphere. इसके बाद देखिए साइकियाट्रिक मॉर्बिडिटी। तो इसका मतलब क्या है? साइकियाट्रिक मॉर्बिडिटी का मतलब है द इंसिडेंस ऑफ बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिटोरिएशन एज अ रिजल्ट ऑफ अ मेंटल और साइकोलॉजिकल कंडीशन जनरली कॉज्ड ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। तो औरत के खिलाफ वायलेंस का एक बहुत बड़ा कारण है घर में मर्दों का अल्कोहल यानी शराब का सेवन करना। तो शराब के पीने से मैंने कल भी आप लोगों को समझाया था कि हमारा जो हाइंड ब्रेन है, ब्रेन के पिछवाड़े हिस्से में जो हाइंड ब्रेन नाम की लॉब रहती है वो काम करना बंद कर देती है। तो इससे क्या होता है, जो भी लोग रेगुलरली कांस्टेंट अल्कोहल कंजम्पशन का हैबिट बना लेता है उनके अंदर काफ़ी सारे साइकोलॉजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स दिखाई देना शुरू हो जाता है और ये सब प्रॉब्लम्स बाहर आते हैं वायलेंस के ज़रिए। मतलब जब वो दूसरों के खिलाफ, खास करके घर की औरतों के खिलाफ वायलेंस का प्रयोग कर रहा है तब। और साथ में इन सब मर्दों का कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी हो जाता है, जैसे ज़्यादा दिनों तक, काफ़ी दिनों तक रेगुलरली अल्कोहल का सेवन करने से कहा जाता है कि शरीर में जितने भी नर्व्स हैं वो बहुत वीक हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, तब कोई भी इंटेलेक्चुअल काम उस आदमी से नहीं हो पाता है। तो आप अक्सर देखिएगा कि ज़्यादातर अल्कोहल एडिक्ट व्यक्तियों के काम चला जाता है, वो ज़्यादा दिन नौकरी नहीं कर पाता है, उनके अंदर बहुत सारे बैड हैबिट्स डेवलप कर जाता है, जैसे चोरी करना, दूसरों के सामान बिना बताए उठा लेना। तो इन सब वजह से उनका काम करने का जो क्रिएटिव माइंड वो बुरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे मर्द फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं जब काम चला गया, जब वो कुछ अच्छा करने के लायक ना रहा तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और फ्रस्ट्रेशन के कारण भी वो अपने घर की औरतों पर हाथ उठाता है। फिर देखिए रेगुलर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल बाय द हस्बैंड हैज़ बीन स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद पुअर मेंटल हेल्थ ऑफ वीमेन। तो जब मर्द हर रोज़ अल्कोहल का सेवन करके घर आते हैं और औरतों पर हाथ उठाते हैं, उन पर वायलेंस का प्रयोग करते हैं, तो वीमेन जो है उनका मेंटल हेल्थ, मेंटल डेवलपमेंट वो बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्टेड होता है, क्योंकि हमेशा उसे डर डर के रहना पड़ता है कि कब उसका पति अल्कोहल पीकर घर आएगा और उस पर मार पिटाई करेगा।
तो इससे औरत का भी जो क्रिएटिव माइंड, कुछ सोचने का, कुछ नया करने का जो शक्ति, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। इसके साथ देखिए, अल्कोहल ऑपरेट्स एज अ सिचुएशनल फैक्टर, increasing the likelihood of violence by reducing inhibitions, clouding judgment, and impairing an individual's ability to interpret cues. तो अक्सर देखा जाता है कि जो भी मर्द अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में रहता है, बहुत ज़्यादा शराब पीने पर उसका ब्रेन काम नहीं करता है। तब क्या होता है, उसका जो जजमेंटल पावर, क्या गलत है क्या सही है, ये विचार करने का, सोचने का पावर, वो बुरी तरह से ख़त्म हो जाती है। और क्या होता है, वो अक्सर उसके जो करीबी रिश्तेदार है, रिलेटिव्स है, उसके वाइफ, उसके बेटी, इनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर पाते। फिर कुछ सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी है जो औरत पर वायलेंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है। वो क्या है? Socio-demographic factors. Patriarchy has been cited as the main cause of violence against women. तो patriarchy का मतलब हम सब जानते हैं, पुरुष तंत्र। जिस समाज में माना जाता है कि पुरुष ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, औरत कम इम्पॉर्टेंट है, हमेशा औरत को पुरुषों के ऑर्डर और हुक्म के नीचे दबे रहना है, कभी भी मर्दों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाना है, ऐसे समाज को कहा जाता है पैट्रियार्कल सोसाइटी। तो ऐसे पैट्रियार्की में जब भी वीमेन अपने हक के लिए, अपने लिबर्टी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए आवाज़ उठाती है, तभी उन्हें समाज के मर्दों से वायलेंस और हिंसा का शिकार होना पड़ता है। उसके बाद कुछ फैमिली फैक्टर्स भी औरत पर हिंसा के लिए जिम्मेदार है। एक्सपोजर टू हार्श फिजिकल डिसिप्लिन ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड विटनेसिंग द फादर बीटिंग द मदर ड्यूरिंग चाइल्डहुड इज अ प्रेडिक्टर ऑफ विक्टिमाइजेशन एंड परपेट्रेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वाइफ इन एडल्टहुड। तो हमेशा से एक बच्चा जब छोटी उम्र से ही काफ़ी कठिन फिज़िकल डिसिप्लिन के सामने आते हैं। तो फिज़िकल डिसिप्लिन मतलब कहा जाता है तुम्हें सुबह 5 बजे उठना है, उठकर हमेशा अपना काम खुद अपने हाथों से करना है, अपने खाना खुद बनाना है, बर्तन खुद को मांजना है। और अगर एक दिन के लिए भी वो बच्चा ये डिसिप्लिन तोड़ते हैं तो उस पर मार पिटाई होती है। डिसिप्लिन के बाहर जाने से ही उस पर बहुत जुल्म उठाया जाता है। और उसने ये भी देखा कि उसके अब्बू हमेशा उसकी अम्मी पर हाथ उठाता है, मारता पीटता है। तो ये सब देखकर जब वो बड़ा होता है तो वो खुद भी सोचने लगता है कि ऐसा हर घर में होना चाहिए, जहाँ पर बच्चों को स्ट्रिक्ट फिज़िकल डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। अगर डिसिप्लिन थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाती है तो बच्चों पर जुल्म करना है और वाइफ को हमेशा डोमिनेट करके दबा कर रखना है। अगर वो अपने हक के लिए, अपने लिबर्टी के लिए कुछ मांग रही है तो उसका ज़ुबान बंद कर देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, कुछ ट्रेडिशनल और कल्चरल प्रैक्टिसेस भी वीमेन पर हिंसा का प्रयोग का कारण है, जैसे फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। तो ये एक बहुत पुराना सोशल ट्रेडिशन है। तो जेनिटल म्यूटिलेशन का क्या मतलब है? फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन मतलब जब भी एक बच्ची पैदा हुई तो उस बच्ची का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसका जो वेजाइना, उसको डैमेज कर दिया जाता है। तो क्या होता है, अक्सर वो बच्ची मर जाती है, या फिर अगर ज़िंदा भी रह जाती है तो उसका जो रिप्रोड्यूस करने का ताकत, उसका बच्चा पैदा करने का क्षमता, वो ख़त्म हो जाती है, जिसको इनफर्टिलिटी कहा जाता है। वो कभी माँ नहीं बन सकती है। एंड लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कंबाइंड विद इंक्रीज्ड फिजिकल सफरिंग।
तो एक बच्ची की साइकोलॉजी पर इसका बुरा असर होता है। जब पैदाइश के कुछ दिन बाद ही उसके साथ इतना बड़ा भयानक एक हिंसा हुआ, तो वो मन ही मन बहुत ही डरी सी, घबराई हुई और साइकोलॉजिकली डैमेज्ड एक इंसान बन जाता है, और साथ में उसका फिज़िकल जो सफ़रिंग वो भी बढ़ जाता है। क्योंकि एक औरत का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अगर उसको हानि पहुंचाया जाएगा तो उसका जो बॉडी मेटाबॉलिज्म है वो भी बहुत एडवर्सली और नेगेटिवली अफेक्टेड होगा, जिससे उसके लिए ज़्यादा दिन ज़िंदा रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसके बाद एसिड अटैक्स, ये अक्सर आप न्यूज़पेपर्स में और मीडिया चैनल्स में देखते रहते हैं कि अगर किसी औरत ने किसी भी मर्द का प्रपोज़ल को ठुकरा दिया या फिर मर्द के बुरे कारनामों का प्रतिवाद किया, तो उसके ऊपर रिवेंज लेने के लिए औरत के चेहरे पर एसिड छिड़क दिया जाता है, ताकि वो पूरी तरह से उसका चेहरा जल जाए, उसका आइडेंटिटी क्राइसिस में आ जाए। क्योंकि अगर किसी का चेहरा आप बिगाड़ देंगे, जैसे आपने लक्ष्मी को देखा, उसके ऊपर एक फिल्म भी बना था, लक्ष्मी के चेहरे पर कुछ एंटी सोशल लोगों ने जब एसिड छिड़क दिया, तब लक्ष्मी की पूरी चेहरा ही एकदम परवर्टेड हो गई और उसका आइडेंटिटी भी क्राइसिस में आ गया। और लक्ष्मी का केस जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ हमारे होम मिनिस्ट्री को और हर किसी राज्य की होम मिनिस्ट्री को, सेक्रेटेरिएट को ये ऑर्डर इशू कर दिया था कि एसिड का सेल के ऊपर एक प्रतिबंधक लगाया जाए। कोई भी दुकान में, किसी भी दुकान में एसिड का सेल होना और किसी भी व्यक्ति द्वारा उसका खरीदना, इन सब पर रोक लगना चाहिए। और सच में ही आज हम देखते हैं कि एसिड का जो सेल एंड परचेस, उस पर काफ़ी रोक लग गया है। फिर किलिंग इन द नेम ऑफ फैमिली ऑनर, ये भी अक्सर देखा जाता है बांग्लादेश, इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान, पाकिस्तान, टर्की और इंडिया में, कि अगर एक औरत ऐसा कुछ करती है जो उसकी परिवार की इज्जत के खिलाफ जाती है या फिर उसकी परिवार की इज्जत पर कोई नेगेटिव असर छोड़ सकती है, तो उसको मार डाला जाता है। तो इंडिया में ये एक कॉमन घटना है कि अगर घर की लड़की, घर की बेटी किसी नीच जात के लड़के से प्यार करती है और भाग के शादी कर ली है, तो परिवार की इज्जत चली जाएगी, ये सोचकर उस लड़की की ही भैया या फिर उसके पिता उस लड़की का और साथ में उसके पति का कत्ल कर देते हैं। तो दिस इज़ ऑनर किलिंग, ये भी एक किस्म का ह्यूमन राइट्स वायलेशन है और औरत पर वायलेंस का प्रयोग है। और अर्ली मैरिज तो है ही, मतलब 18 साल की उम्र हुआ भी नहीं, लेकिन माँ, बाबूजी और भैया लोगों ने मिलकर औरत की शादी करवा दिया। क्यों? हो सकता है वो फैमिली काफ़ी इकोनॉमिकली पुअर है, तो इस बेटी को घर में रखना, खाना उसको खिलाना, फिर उसको पढ़ाना, इतना पैसा नहीं है, तो जल्द से जल्द इसकी शादी करके इसे दूसरे घर में भेज दो। और जिन लड़कियों का कम उम्र में शादी हो जाती है, हम सब जानते हैं, वो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होती है, क्योंकि उसके अंदर पढ़ाई लिखाई अवेयरनेस उतना ज़्यादा तो है नहीं। उसके लिए क्या क्या लीगल सिक्योरिटी है, कानून और संविधान ने क्या क्या सुरक्षा का प्रबंध रखा है, वो भी उसको पता नहीं है, तो वो चुपचाप अत्याचार सहती है, कुछ बोल नहीं पाती। अब देखिए जुडिशियरी एंड लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी। तो हमारे देश की जो जुडिशियल सिस्टम है और लॉ एनफोर्समेंट मशीनरीज़ है, जैसे महिला अदालतें हैं, ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स है, महिला कमीशन है, वुमेन्स राइट्स कमीशन, तो ये सब उतना भी पावरफुल नहीं है जितना पावरफुल होने से वो औरतों का
वायलेंस, औरतों पर वायलेंस का प्रयोग को रोक सकता है। एक्चुअली जितने भी ह्यूमन राइट्स कमीशंस है, जितने भी वीमेंस राइट्स कमीशंस है, वो सब एक्चुअली तब तक इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता है जब तक स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उनको उतना पावर ना दे। तो ये सब कमीशंस एक्चुअली औरत पर अगर हिंसा का प्रयोग हो रहा है तो उस पर जांच पड़ताल कर सकते हैं, तहकीकात कर सकते हैं, रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास जमा कर सकते हैं। लेकिन सच में जो लोग दोषी है, कसूरवार है, उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता है। और इसी वजह से देखा जाता है कि औरतों पर वायलेंस और एक्सप्लॉयटेशन चलता रहता है। और फिर कुछ सोशियो कल्चरल फैक्टर्स भी है, जैसे कि हमने अभी अभी कहा, कुछ जेंडर स्टीरियोटाइप्स है कि ये प्रोफेशन सिर्फ वुमन के लिए है, ये प्रोफेशन सिर्फ मेन के लिए है, तो मेन का प्रोफेशन में वुमेन कैसे आएगा। तो ऐसा कुछ स्टीरियोटाइप्स भी है। तो द प्राइमरी रोल्स फॉर वीमेन हैव बीन मैरिज एंड मदरहुड। माना जाता है वीमेन का एक ही काम है, शादी कर लेना, वहाँ हो जाना, बच्चों का परवरिश करना, पति का सेवा करना। Women must marry because an unmarried, separated or divorced status is a stigma। तो आज भी हमारे समाज में कुछ स्टिग्मा यानी कि कुछ अंधविश्वास है कि अगर एक औरत विधवा हो गई तो मतलब उस पर कोई श्राप है, उसे दोबारा कोई शादी करने से हिचकिचाता है। अगर वो अनमैरिड रहेगी तो समाज तरह तरह की बातें उसके खिलाफ, उसके चरित्र के खिलाफ करेगी। और अगर वो डाइवोर्स्ड है तो समाज के जो दूसरे मेल मेंबर्स, हो सकता है उसी औरत की मेल फ्रेंड्स या मेल रिलेटिव्स, उसकी डिवोर्स स्टेटस का फ़ायदा उठाकर उसे एक्सप्लॉइट करना चाहेगा। और सबसे बड़ी बात, जब तक ये डाउरी यानी दहेज का कस्टम चलता रहेगा, औरतों पर वायलेंस कभी कम नहीं होगा। तो इन सब वायलेंस का कंसिक्वेंसेस क्या है, परिणाम क्या है, अंजाम क्या है। हेल्थ इश्यूज, जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने कहा, साइकोलॉजिकल हेल्थ का डिटोरिएशन हो जाना, साइकोलॉजिकली वो अच्छा कुछ सोच नहीं पाती है, क्रिएटिव थिंकिंग कम हो जाती है। फिर उसका फिज़िकल हेल्थ भी बहुत डिटोरिएट करता है। अगर हर रोज़ उसको वायलेंस सहना पड़ेगा तो उसकी हेल्थ नेचुरली डिटोरिएट करेगा। फिर उसका रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ पर भी बुरा असर हो सकता है। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने कहा था, असुरक्षित यौन संबंध से बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस औरतों को सहना पड़ता है। अगर मर्द के अंदर काफ़ी सेक्सुअल डिजीज़ है और वो बिना कॉन्डोम इस्तेमाल किए ही औरत के साथ सेक्सुअल रिलेशन करता है तो इसका नतीजा औरत को ही भुगतना पड़ता है। एड्स जैसे भयंकर जानलेवा बीमारियां औरत को अटैक करती है, जिससे उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी बच्चा पैदा करने का क्षमता भी ख़त्म हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, उसकी जो सेल्फ एस्टीम, उसका इज्जत, उसका सेल्फ रेस्पेक्ट, उसकी आत्मविश्वास, ये सब ख़त्म हो जाता है। फिर एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है। ज़्यादातर औरतें जो हिंसा का शिकार होती है वो बहुत कम उम्र में शादी होने के लिए पढ़ाई लिखाई ज़्यादा दूर तक नहीं कर पाती है, तो उसके अंदर जागरूकता, पढ़ाई लिखाई ये सब कम होने की वजह से वो इकोनॉमिकली, फिनेंशियली मर्दों पर डिपेंडेंट होती है और उनकी यही इकोनॉमिक डिपेंडेंस का फ़ायदा उठाकर उनके हस्बैंड लोग उन पर काफ़ी जुल्म उठाती है। तो इसका डायरेक्ट कुछ कॉस्ट भी है, जैसे वुमन अगर हर रोज़ हिंसा का शिकार हो रही है तो उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी हेल्थ और उसकी जो सोशल सेक्टर में रोल है वो सब नेगेटिवली अफेक्टेड होता है। और इनडायरेक्ट कुछ कंसिक्वेंसेस भी है, जैसे उसका जो बच्चे होंगे, अगर उस औरत का बच्चा है
तो उन बच्चों पर भी बुरा असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे हर रोज़ देखेंगे कि उनके माँ उनके पापा के हाथों में मार खाते हैं, तो बच्चों के दिल पर भी ये बहुत बोझ बन जाता है। बच्चे भी ठीक तरह से पढ़ाई लिखाई में या दूसरे किसी भी क्रिएटिव एक्टिविटी में मन नहीं लगा पाते हैं। और जो औरत वायलेंस का शिकार हो रहा है, उसका ध्यान हमेशा उसके साइकोलॉजिकल और हेल्थ प्रॉब्लम्स में इतना उलझे रहता है कि वो अपने बच्चे का ठीक तरह से ख्याल भी नहीं रख पाती है। तो इसके साथ जुड़ा है एक डेवलपमेंट इशू, जैसे अगर औरत ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू हिंसा का शिकार होंगे तो समाज में जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आएगा उसमें उनका पार्टिसिपेट करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। घर में अगर औरत को हमेशा ये समझाया जाएगा कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ घर संभाल सकते हो, तुम बर्तन धोने के लिए बना हो, तुम बच्चे पैदा करने के लिए बनी हो, तुम्हें सिर्फ खाना पकानी है, तुम बाहर जाकर कोई भी रिस्पॉन्सिबल काम करने लायक नहीं हो, तुमसे कोई अच्छा काम नहीं होगा। अगर बार बार ये उसको समझाया जाए तो क्या होगा? औरत का घर के बाहर निकलकर किसी अच्छे काम में इन्वॉल्व होने का जो इच्छा वो चला जाता है। और क्या होता है, जितने भी हमारे देश में जितने भी पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स है, तो वो सब पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स यानी कि गरीबी हटाने के लिए बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स सरकार अंडरटेक करता है। और इन सब पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स में मर्दों के साथ साथ औरत को भी इक्वली पार्टिसिपेट करना चाहिए, तभी ये गरीबी हटाओ प्रोग्राम सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन लगातार हिंसा का शिकार जो औरतें हो रही है, उनके लिए ये सब पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स में भाग लेना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, वो हिस्सा नहीं ले पाती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स अनसक्सेसफुल, असफल रह जाती है। और इससे भी हमारे समाज पर, समाज की डेवलपमेंट पर एक बुरा असर होती है। और राइट्स इशू तो है ही, किसी भी तरह का वायलेंस, औरत के खिलाफ किसी भी तरह का हिंसा असल में हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है उसका लंघन करता है। तो फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से आर्टिकल्स में है आप जानते हैं। आर्टिकल 14 जिसमें कहा जाता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कानून के नज़र में मर्द औरत सब एक समान है और कानून सबको एक तरह से प्रोटेक्शन देगा, हिफाजत करेगा। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, पर्टिकुलरली राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, मतलब रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ जीने का अधिकार। तो लगातार हिंसा का प्रयोग होने पर आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी ये बुरी तरह से अफेक्टेड होती है। आर्टिकल 19 जो कि औरत का फ्रीडम, औरत का ही नहीं, फ्रीडम ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, फ्रीडम ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन्स की बात होती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ पब्लिकेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो ये सब फ्रीडम्स जो है वो भी औरतों को इनकार किया जाता है अगर उस पर वायलेंस का प्रयोग हो रहा है तो। और आर्टिकल 32 जिसमें कहा जाता है कि काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, मतलब अगर औरत का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो अपना अधिकार वापस पाने के लिए वो कई किस्म के मतलब कुछ जुडिशियल उसके रेमेडीज़ भी है जिसकी मदद से वो अपना राइट्स वापस पा सकती है। लेकिन अगर औरत पर रेगुलर हिंसा का प्रयोग हो रहा है और अगर वो औरत अनपढ़ है, ज़्यादा जागरूक नहीं है संविधान के बारे में, लॉ के बारे में, तो वो आर्टिकल 32 में जितने भी जुडिशियल रेमेडीज़ के बारे में जिक्र है उसका भी फ़ायदा नहीं उठा पाती है।
ओके, तो अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि औरत पर हिंसा को कम करने के लिए या दूर करने के लिए कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने क्या क्या कदम उठाया है, वो सब अगले लेक्चर के लिए। ओके, टिल देन बाय।